Okay, so let's start with part 3 of Gauss law and its application. We are solving the NCERT at fingertips questions from 92 onwards. 91 was the last question that we solved, isn't it? अब आपको याद होगा कि गॉस थ्योरम क्या है? The Gauss theorem says, what is Gauss theorem? Gauss theorem says integral of E bar dot ds bar is equal to q upon epsilon 0. What does the LHS indicate? LHS indicate the electric flux. It indicates electric flux is equal to, and what is q indicating? Summation of charges inside. Sum of charges inside. Correct, na? We have solved some questions in the previous lecture. Okay. Two infinite plane parallel sheets separated by a distance d have equal and opposite uniform charge densities. Uniform charge density is sigma. The electric field at the point between the sheets is. The electric field between the points at the sheet is. कैसे करेंगे बताइए? There are two sheets. Suppose this is one sheet. And उसी तरह का और एक sheet है यहाँ पे. समझो कि यहाँ पे. So these are the two sheets. They are separated by the distance d. D is the distance of separation between these two sheets. और उनके ऊपर चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज. तो यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द अदर वन? तो माइनस होगा. बराबर है क्या? इज दिस ओके? अब इस प्लेन की वजह से या प्लेट की वजह से यहां पर कितना होगा? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस d by 2. हाफ वे थ्रू डिस्टेंस कितना होगा? d by 2 ना. halfway through the distance is d by 2. if I show it here, ये distance और ये distance, it's going to be d by 2 and d by 2 each. I hope you understand what I'm saying. Correct? अब हमने previous lecture में जो देखा है, हाँ, हमने जो previous lecture में देखा है, the Gauss law जो भी हमने देखा था, applications of Gauss law, यहाँ पर जो हमने देखा था that अगर electric field intensity I want to find out the electric field intensity at any point outside the electric field intensity, applications of Gauss law जो हमने देखा था इसमें या शुरुआत में देखा था यहाँ पे, the electric field intensity outside the charged plate, infinite charge sheet जो रहता है, it is sigma upon 2 epsilon 0, isn't it? It is sigma upon 2 epsilon 0, correct ना? तो वही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ. यहाँ पर what will be the electric field intensity because of the positive charge and electric field intensity because of the negative charge. अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज आउटसाइड ना. हाँ, इफ सिग्मा इज द इलेक्ट्रिक सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज सो इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, करेक्ट? उसी तरह से वहां पर नेगेटिव चार्ज है. नाउ दिस इज, ये जो मैंने अभी लिखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. आई वुड से दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. यस और नो? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. उसी तरह से वहां पर नेगेटिव चार्ज भी है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी वहां पर इंटेंसिटी आएगा. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट? इट इज गिवन बाय E बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, नेगेटिव के लिए वो इनवर्ड होता है. हेलो, ऐसे मत देखो. यहाँ पर हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होता है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है. वही मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है? तो ये नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से इनवर्ड होगा एंड इट इज गिवन बाय अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. यस और नो? तो ये जो पॉइंट है, मैंने इसको सेपरेट दिखाया बट दे आर एक्चुअली एक्टिंग एट द सेम पॉइंट. यस और नो? सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस?
resultant electric intensity, these are the two vectors which are having equal magnitudes and same direction also, they'll get added. So E total is equal to E because of the positive charge plus E because of the negative charge. So it will be sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. So what will be the answer? Sigma upon epsilon naught, and that is option B is the answer there. Is this clear to you all? Is this okay? समझ में आ गया? Okay? I hope this is clear to you all. चलिए आगे बढ़ते हैं. नॉन कंडक्टिव थिंग नॉट हियर कंडक्टिव क्वेश्चन 96. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 95 के लिए. I'll go for question number 95. 93 के बाद we'll go for question number 94. Okay, 94. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. Two large thin metal plates are conducting infinite parallel sheets. चलिए यहाँ पर भी वैसा ही कुछ प्रॉब्लम है. So they are close to each other. On their inner surfaces, the plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude this. Same है ना फिर ये तो इसी के जैसा है ना. It's the same thing. इसी तरह के है. They have got the metal plates which are having the intensities of equal magnitude and opposite direction. They are saying वही है. Two thin metal plates. They have got the intensities like this. ठीक है. Have parallel close to each other on their inner surfaces. अंदर surfaces की बात क्या हो रही है वहाँ पे? Have the surface charge densities of opposite sign and of magnitude this. So what will be sigma is equal to, now this is coulomb per meter square, surface charge density है. So sigma is equal to 16 into 10 raised to minus 22 coulomb per meter square. बराबर है क्या? दूसरा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि होगा कूलम पर मीटर में, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज कूलम पर मीटर क्यूब. दिस इज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वॉल्यूम. इज दैट क्लियर? थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज. द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो जैसे हम जानते हैं दैट ई टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो. तो मुझे बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सो व्हाट विल बी ई टोटल ओवर हियर? सिग्मा का वैल्यू है 16 इंटू 10 रेस टू 22 माइनस 22 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू मैंने आपको कल बताया था, याद है वो कितना है? इट इज 8.85 इंटू 10 रेस टू माइनस 12. तो कुल मिलाकर आंसर क्या आएगा ये? इट इज 16 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 8.85 को मैं लिखूंगा 9 इंटू 10 रेस टू माइनस 22 प्लस 12 इज माइनस 10. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9 वन जा बराबर है क्या? कितना बचा? 7 70 7 जा 7 बचा 70 1.77 into 10 raised to minus 10 Newton per coulomb, which is the nearest value. 10 raised to minus 10 1.8. So the answer is A here. Is this clear to you all? Any doubts about that? ठीक है. I'll go for question number 95 now. Question number 95. देखिए वैसे ही टाइप का ही है. सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स. क्वेश्चन नंबर 95. टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, द वैल्यू ऑफ ई बार इन द रीजन 2. यहाँ पर क्या होगा इसका वैल्यू? देखिए the two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces are the plates having surface charge densities of opposite signs, magnitude this. So this is sigma. Sigma is equal to कितना दिया है? 27 into 10 raised to minus 2 coulomb per meter square. The electric field in the region 2. यहाँ का region पूछा है यहाँ पर. तो it is again same. क्या आंसर आएगा इसका? The electric field intensity in the region 2 is equal to electric intensity due to positive charge plus electric intensity due to negative charge, which is equal to sigma upon epsilon. तो आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर कीजिएगा. आई विल गिव इट टू यू. रिमेनिंग पार्ट इज होमवर्क. इज दैट क्लियर? सो द आंसर इज 3.05. आप चेक कर लीजिएगा इसको सब्स्टिट्यूट करके. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. इज दैट ओके? डिस्कस किया है मैंने, आपके लिए बता दिया ये. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92.
क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया है यहाँ पे? दे से an electric dipole consists of dipole. An electric dipole consists of charges plus minus 2 into 10 raised to minus 8 कूलम. डाइपोल मतलब दो पोल्स होते हैं, एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस. तो ये है माइनस और प्लस, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 into 10 raised to minus 3 मीटर. सो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, this distance is called as 2L, that is equal to 2 into 10 raised to minus 3 meter. It is placed near a long line charge, ये है, of linear charge density. By linear charge density is denoted by dash dash lambda. It is 4 into 10 raised to minus 4 coulomb per meter. 4 into 10 raised to minus 4 coulomb per meter, linear charge density, such that the negative charge is at a distance of 2 centimeter from the line charge. The force acting on the dipole will be, the force acting on the dipole will be. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? इज दिस ओके? ठीक है. नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज लाइक योर सिलेंडर का प्रॉब्लम. सिलेंडर का जो था ना, हमने जो डिराइवेशन देखा था सिलेंडर का, सिलेंडर का जो था, देखिए आपको अगर याद होगा तो ये सिलेंडर ऐसा रहता था और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, आई होप यू रिमेंबर दैट. तो यहाँ पे I'll use that formula for linear charge density. The electric field intensity so I'll say the electric field intensity due to linear charge density is given by 1 upon 2 pi epsilon 0 sigma upon r. ये हमने डिराइव किया था, अगर आपको याद है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा 1 upon 2 pi epsilon 0 sigma upon r. या यू रिमेंबर दैट? वेरी गुड. तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है. नाउ यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द नेगेटिव चार्ज. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द नेगेटिव पोल या नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय, क्या आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ यहाँ पर जो नेगेटिव वाला है वहां पर फोर्स कैसे एक्ट करेगा? दिस इज नथिंग बट, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेचुरली इसके ऊपर ये अट्रैक्ट करेगा इस तरह से. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द नेगेटिव चार्ज. इज दिस ओके? दिस इज द डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय 1 upon 2 pi epsilon 0, 1 upon 2 pi epsilon 0, क्या आएगा बताइए? लैम्बडा अपॉन r1. ये डिस्टेंस है, उसको मैं r1 बोल देता हूँ. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी मुझे जो पता है वो मुझे 1 upon 4 pi epsilon 0 पता है ना. I know the expression for 1 upon 4 pi epsilon 0. Now what is the expression for that? 9 into 10 raised to 9 into 2 times lambda. लैम्बडा यहाँ पे दिया है 4 into 4 raised to 10 raised to minus 4 divided by r1. What is this distance? This distance is r1, I would say. तो ये कितना डिस्टेंस है? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर मतलब 2 into 10 raised to minus 2. इज दिस ओके? ठीक है. उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर R2 लिखूँ, E2 लिखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? इट इज अगेन 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्बडा अपॉन R2. तो ये है R2 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक होगा. समझ में आ गई बात? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग है, तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 विच इज गिवन बाय, कितना आएगा ये? 9 into 10 raised to 9 into 2 times lambda, that is 4 into 10 raised to minus 4 divided by R2. Now R2 is 2 into 10 raised to minus 3, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? अरे R2 is 2 सेंटीमीटर प्लस ये, बराबर है क्या? दे से 2L is this much, 2 into 10 raised to minus 3 मतलब दिस इज 2 मिलीमीटर, मतलब दिस इज 2.2 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है क्या? 0.2 सेंटीमीटर. इज दिस ओके? और आई कैन राइट दिस एज 0.2 into 10 raised to minus 2 मीटर. इज दिस ओके? तो अब ये टोटल डिस्टेंस
2 centimeter plus 0.2 centimeter. Are you understanding that? What is R2? R2 is equal to 2 into 10 raised to minus 2 plus 0.2 into 10 raised to minus 2. तो कुल मिलाकर क्या आएगा ये 2.2. Are you understanding that? Is this clear to you all? Now let us simplify this now. इसको simplify करते हैं. तो एक एक करके इसको simplify कर लेते हैं. This is nothing but ये 2 gets cancel. 9 4 जा कितना आएगा ये? What will be the 36 into 10 raised to minus 2 ऊपर आके plus 2 बनेगा 11 minus 4 7. Is that clear? This is Newton per coulomb. समझ में आ रहा है? This is Newton per coulomb. अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए. This is nothing but 9 into 2 into 4 divided by 2.2. 10 का पावर देखेंगे minus 2 ऊपर जाके plus 2 11 minus 4 7. Is this okay? So that will be 2 1.1, isn't it? So कुल मिलाकर what will be E plus is equal to 36 upon 1.1 into 10 raised to 7. Is that clear? समझ में आया? अब देखिए ये जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अपोजिट दिशा में होगा ना, मतलब इस तरह ऐसे यहाँ से इस तरफ एक्ट करेगा. यस और नो? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एट द पॉजिटिव चार्ज. इज दिस ओके? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा और इसे रिपेल करेगा. समझ में आ रहा है? अब इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर इस फील्ड बिकॉज या इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से ये जो डायपोल है इस डायपोल के ऊपर एक ऐसा फोर्स है जो उसको इधर खींच रहा है. आई विल कॉल दिस एज फोर्स 1, isn't it? या फोर्स ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज F1 आई विल कॉल दिस एज. उसी तरह से इसको यहाँ पर दूसरे एंड का जो है उसे वहां पर वो पुश कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में. सो दिस इज फोर्स 2 एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज द, क्योंकि ये डायपोल है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? द डिफरेंस ऑफ दीज टू. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके. अब हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं तो व्हाट इट विल बी लाइक? इट इज F अपॉन Q0. करेक्ट ना? इट इज F अपॉन Q या Q0. करेक्ट है? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? इट इज इक्वल टू E इंटू Q0. बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो इतना न्यूटन फोर्स है, लेकिन ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है. वो चार्ज कितना है? इतना है, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 कूलम. समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग एट दिस नेगेटिव चार्ज? फोर्स एक्टिंग एट द नेगेटिव चार्ज F1. फोर्स एट नेगेटिव चार्ज, फोर्स एट नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? इट विल बी Q इंटू E माइनस. समझ में आ गया? So what is the Q का वैल्यू देयर? Q का वैल्यू इज इक्वल टू 2 into 10 raised to minus 8. समझ में आ रहा है? Isn't it? So this is nothing but 2 into 10 raised to minus 8 into E minus which is equal to 36 into 10 raised to 7. तो कुल मिलाकर आएगा 3672 into 10 raised to minus 1. So this is 7.2 Newton. Is this okay? F1. Similarly, what will be F2? It is the force on positive charge. Force on positive charge. The force on the positive charge is given by, it will be Q into E plus. ये E minus है, याद रहे. This is E minus and this is E plus. So again the charge is 2 into 10 raised to 8 into this is 36 upon 1.1 into 10 raised to 7. ये minus 8 है. करेक्ट है. तो ये क्या मिल जाएगा? अब देखिए 3672 और 720 अपॉन 11 into 10 raised to minus 1, that is 72 upon 11. So what is that? 66 60 5 जा बराबर है क्या? 55 50 4 जा न्यूटन. तो इसका मतलब है इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक फोर्स है इस डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू F1 7.2 न्यूटन
और दूसरा फोर्स है इस दिशा में विच इज F2 इज इक्वल टू 6.54 न्यूटन. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? इट इज F1 माइनस F2. बराबर है क्या? दैट इज 7.2 माइनस 6.54. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू? 0.66 Newton. The force acting is 0.66 Newton towards the left side. So what is the answer here? 0.66 Newton away from the line charge, 0.6 Newton, 6.66, 7.2. So what is the final answer? है ना? Away from the line charge. It is matching. It is D. Nearest answer. 0.6 Newton towards the line charge. Is it? Is this clear to you all? Any doubts about that? So the answer is D here. 0.6 Newton towards the line charge. Towards line charge. And this is star. Is it? हाँ, ये स्टार प्रॉब्लम है. समझ में आ गई सबको ये? ओके. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 96. Question number 96. A charged ball B hangs from the silk thread. This is a silk thread S, which makes an angle theta. With large charged conducting sheet. This is the charge conducting sheet as shown in the figure. The surface charge density of the sheet is proportional to और इक्वल टू हम बोल सकते हैं. हम इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा. दे आर आस्किंग व्हाट इज सिग्मा. आपको यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये पता होना जरूरी है. मतलब क्या है? चलिए बात करते हैं. अब यहाँ पर इस एट दिस पॉइंट इफ आई कंसिडर दिस. तो what are the forces acting on this? Let me draw the free body diagram here. अगर हम उसका free body diagram of the ball FBD of charged ball B, if I'll draw, क्या क्या forces act हो रहे हैं इसके ऊपर? Can you please tell me? पहला तो act हो रहा है कि भाई इसका खुद का weight is acting vertically downwards. What is that weight? Equal to mg. सही है. Then इसके अंदर tension है. I'll show the tension here. I'll show the tension over here. This is the tension. Correct? I'll say T is the tension. और क्या है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है. उसका सपोर्ट है क्या कहीं पे? सपोर्ट होगा तो ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा. सो आई विल रिजॉल्व दिस. इसे मैं रिजॉल्व करता हूँ. यहाँ पे इस टेंशन को मैं रिजॉल्व करना चाहूँ. अच्छा, बाय द वे ये ऐसे नहीं जाएगा. इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है इधर. दिस इज अ चार्ज बॉल ना, तो माइट बी दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से, जिसके चलते हुए वो यहाँ से रिपेल हो चुका है. सो देयर हैज टू बी द फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन. तो ये जो फोर्स होगा इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा. समझ में आया? Isn't it? This is the force acting. This is actually the electric field intensity E, but that is equal to force upon charge. समझे क्या? So what is this? This force is equal to F is equal to E into Q. Now इसकी वजह से लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से यहाँ पर जो होगा, व्हाट इज दिस E का वैल्यू? E का वैल्यू विल बी हियर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू Q. इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस ओके? हाँ, तो निगेटिव होगा तो इधर चिपक रहेगा ना, जाएगा ही नहीं बाहर वो. अब वो खुद ब खुद बाहर जा रहा है क्योंकि वो वहां पर रिपल्शन है. अंडरस्टूड?
समझ में आ गया? रिपल्शन होता, सॉरी निगेटिव होता तो उसको चिपक के रहता ना वो चुंबक की तरह। यस और नो? अब ये जो फोर्स है बाय द वे, ये जो टेंशन है उस टेंशन को मैं रिजॉल्व करना चाहूंगा। एक ऐसा होगा उसका रिजोल्यूशन कंपोनेंट और दूसरा ऐसा होगा। ठीक है ना? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, सो ये होगा टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ना? कलर ओके, आई विल नॉट यूज दैट कलर एनीमोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि इफ आई राइट डाउन कि दिस इज बैलेंस, तो ये टी साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स एंड टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? इजंट इट? सो अब मुझे बताइए व्हाट इज टी साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 into q. Yes or no? And t cos theta is actually equal to mg. Now let me take the ratio of these two. If I'll take the ratio, what am I going to get there? T gets cancelled and this will give me tan theta is equal to क्या आएगा? Is equal to sigma q upon epsilon 0 mg upon 1 है, will be into 1 upon mg. Yes or no? Correct? अब इसमें मुझे चाहिए व्हाट इज द डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, सो आई से सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 एम जी इंटू टैन इज इक्वल टू टैन थीटा। देयरफॉर दिस विल गिव मी व्हाट इज सिग्मा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू एम जी डिवाइडेड बाय क्यू। समझ में आ गया? और वो ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इन्होंने पूछा है दैट सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। इस इक्वेशन से देख के मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। इज दिस ओके? एंड दैट विल बी द आंसर हियर। एनी डाउट्स अबाउट दैट? लेकिन वो ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा। सो आई थिंक दिस इज अगेन अ स्टार प्रॉब्लम। इज इट नॉट? या हाफ स्टार है? पता नहीं, स्टार। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। कंसिडर consider a thin spherical shell of radius r, a thin spherical shell of radius r thin consisting of uniform charge density sigma। तो इसको जो भी कुछ चार्ज दिया जाएगा इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस। समझ में आ गया? एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू r। समझ में आ रहा है? ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर एंड आउटसाइड द शेल। इसके बाहर एक पॉइंट है P। This point P is at what distance? This point P is at a distance x। बराबर है क्या? Isn't it? This point is at a distance x। तो x distance है यहां से वहां तक का। ये डिस्टेंस x है। ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे? ये तो हमारा स्फीयर वाला ही प्रॉब्लम हो गया ना, स्फीयर वाला प्रॉब्लम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इट इज q अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मेट है उसका सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले दिए थे मैंने, बराबर है? फॉर्मूला पेज अपडेट करते जाओ, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला पेज अपडेट करके आपके सामने रखो। जैसे जैसे नए नए फॉर्मूले आते हैं ना, हर रोज के हर रोज वो फॉर्मूला पेज तुम्हारा अपडेट करो फिजिक्स का, और वो सामने रखो एक्सप्लेन करते समय, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूछूंगा तो बताने के लिए भी आसान हो जाता है। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द
इंटेंसिटी, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. दैट्स द आंसर. समझ में आ गया? बाकी सब चीजें कांस्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे. रेस्ट ऑल दिस इज ऑल कांस्टेंट यहाँ पे. सो आई विल से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. डी इज द आंसर. इज दिस ओके? ये बहुत सिंपल था एक्चुअली. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 90. अब ये जो गॉस थ्योरम हमने देखा, उसकी वजह से हमने जो फॉर्मूला देखा था, इट वाज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड. मतलब हमने जो गॉस थ्योरम डिस्कस किया था उसमें जो भी कुछ था कि भाई वो तो वट एवर वॉज द ज्योमेट्री स्फेरिकल ज्योमेट्री अगर है तो वट एवर चार्ज वॉज गिवन, इट वॉज ऑन द आउटसाइड सरफेस, और उस आउटसाइड सरफेस की वजह से यहाँ का क्या होगा ये पूछा गया है. अगर ये कंडक्टर है, इफ इट इज कंडक्टिंग, और अगर ये इफ इट इज अ थिन शेल, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन शेल, तो क्या है वो डिस्कस नहीं किया गया था. तो अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ कि फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट. नाउ दिस इज गिवन, ये हमारे एचएससी में तो नहीं दिया लेकिन इट इज गिवन इन एचसी वर्मा. दिस इज इट. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विच इज इंटरनल. तो यहां पर सपोज वी विश टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. दिस इज द डायग्राम गिवन. तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट वी हैव, एक सेकेंड. वेल लेट्स कंसिडर हियर. तो ये जो डायग्राम दिया है, देयर इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये स्फेरिकल शेल है समझो के. तो अभी तक हमने जो एचएससी में देखा था, द चार्ज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द सरफेस. समझ में आ रहा है क्या? द चार्ज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ओनली. अगर यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है अंदर की तरफ, तो कैसे किया जाएगा उसके लिए हम, तो ये जो हमने देखा था, वी हैव फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, हमको व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू पहले आइडेंटिफाई करना होता है टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यू रिमेंबर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट ना? आइडेंटिफाई, दैट्स व्हाट वी से हियर. इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, कि वी हैव टू चेक हियर व्हाट इज द टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. डिस्क्राइब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. बराबर है ना? और हमने जो डेरिवेशन देखे थे, उस डेरिवेशन में जहां तक मुझे याद है, इट वाज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अभी तक हमने जो देखा था, मतलब इट वाज ऑल सिग्मा. करेक्ट ना? कि भाई जो भी कुछ चार्ज दिया है, इट इज स्प्रेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस एरिया. इट इज स्प्रेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस एरिया. अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि जो भी कुछ चार्ज यहाँ पे है, दिस चार्ज इज बेसिकली अ वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो भी चार्ज है यहाँ पर, वो अंदर की तरफ पूरी तरह से फैला हुआ है वॉल्यूम में. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो यहाँ पर व्हाट इज द टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस दैट आई हैव टू गो फॉर? इधर व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? स्टेप नंबर 1, व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूमेट्रिक. 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम के अंदर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूमेट्रिक और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. डू यू अंडरस्टैंड दैट? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? डिनोटेड बाय रो, isn't it? It is the charge, it is the charge per unit volume. It is charge per unit volume. Understood? अब ये जो वॉल्यूम है वो कितना वॉल्यूम है? तो आई वुड से बाबा दिस टोटल वॉल्यूम इज आर, कैपिटल आर ना. स्फेरिया है तो स्फेरिकल है, तो इट विल बिकम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर? दिस इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. समझ में आ गई बात? इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? चार्ज पर यूनिट, टोटल चार्ज गिवन इज क्यू,
and total volume is 4/3 pi r cube. I hope this is clear to you all. समझ में आ गया? अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेंटर से एक पॉइंट है P, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E bar at point P which is at a distance R from center. समझ में आ गया? From center. Is this okay? यहां पर पॉइंट P के यहां पर क्या होगा इसका, ये मुझे फाइंड आउट करना है. ये बड़ा वॉल्यूम है, उसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट P का डिस्टेंस स्मॉल r है, लेकिन जो चार्ज है वो इतना सारा चार्ज है, उस चार्ज के अंदर पॉइंट P है. इज दिस ओके? समझ में आ गया बात? ठीक है, तो उसके लिए वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस. We consider a Gaussian surface which is in the form of a concentric sphere, which is in the form of a concentric sphere of radius r, of radius small r. तो ये dotted जो है वो Gaussian surface है. Is this clear? This dotted is the Gaussian surface. अब इस Gaussian surface के अंदर कुछ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है. इस चार्जेस की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. This electric field is E bar. Yes or no? Isn't it? और फिर मुझे यहाँ पर एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट एरिया? ds. और वो ds बार भी इसी तरह होगा. यस और नो? दिस ds बार इज आल्सो लाइक दैट. दिस इज ds. समझ में आ रही है बात? इज दिस क्लियर ऑल? हेलो, समझे क्या? सो नाउ आई अप्लाई गॉसेस थ्योरम हियर. LHS, what will be the LHS for the Gauss theorem? Integration of E bar dot ds bar, which is nothing but the electric flux. Yes or no? Electric flux. अब मुझे एक चीज बताइए कि this is nothing but E into ds into cos theta, but as I see here theta is equal to 0, cos theta is equal to 1 and E is a constant. क्यों? क्योंकि इसके अंदर का चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा. सो आई टेक दैट E आउट एंड इट इज इंटीग्रल ऑफ ds. लेकिन इस ds छोटे छोटे ds को अगर ऐड करता जाऊंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा? इट विल बी द total surface area of this Gaussian surface. Yes or no? What will be the total surface area of this Gaussian surface? 4 pi r square. Is this okay? This is LHS. अब RHS मुझे फाइंड आउट करना है. व्हाट इज RHS? RHS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0. Now Q is the charge inside. So what is the charge inside? चार्ज इनसाइड क्या होगा बताइए? This is the volume charge density. So charge inside is equal to volume charge density into volume. Yes or no? Into volume divided by epsilon 0. Now if rho is the volume charge density and what is the volume of this छोटा वाला sphere? इसके अंदर कितना चार्ज होगा? It is the charge per unit volume into volume. So the volume is 4/3 pi small r cube. Are you understanding that? Into epsilon 0. Well, let me equate these two now. इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं अभी. तो क्या मिल जाएगा? LHS is equal to RHS. That means E into 4 pi r square is equal to rho into 4/3 pi r cube divided by epsilon 0. इसमें से pi gets cancel, r square gets cancel, pi gets cancel, r square gets cancel. Is this clear to you all? By the way, what will be rho is equal to? Rho के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो rho is equal to total charge. रो की जगह पर क्या आएगा? अगर इसको टोटल चार्ज मैंने कैपिटल Q दिया है, सपोज लेट मी कॉल दिस एज कैपिटल Q. टोटल चार्ज कितना दिया है इसको? कैपिटल Q. सो रो इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. तो व्हाट इज E इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? इट इज रो के जगह पर आएगा Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू r/3 इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन. सही है? एप्सिलॉन 0 सही है. अब ये 3 ऊपर जाएगा और इस 3 के साथ उड़ जाएगा. उड़ गया तो क्या बचा टोटल कुल मिलाकर बताइए? Therefore E is equal to electric field intensity is equal to
QR 4 pi epsilon 0 r cube. Is this clear? Now this is the formula. ये formula है काय के लिए? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाले के लिए. ओके ये फॉर्मूला है फॉर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कि भाई ऐसे अगर होगा मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और उसके अंदर अगर चार्ज होगा तो ये उसका फॉर्मूला है. इट इज क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब. इज दैट क्लियर? क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब. इज दैट ओके? ठीक है मतलब अंदर से अगर चार्ज भरा हुआ है, इफ द चार्ज इज देयर इनसाइड, इसके अंदर चार्ज है भरा हुआ पूरा वॉल्यूम के अंदर, और उसके अंदर अगर आप कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, एनी पॉइंट इनसाइड विच इज एट ए डिस्टेंस आर, और ये टोटल रेडियस है आर, so it is given by this. Is that clear? So why did I explain this to you? Because it is applicable in the next question. अगले क्वेश्चन में वो applicable है. So let us go for that. क्या है ये? A non-conducting sphere of radius a. Now this diagram is not very clear, I guess. इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए I'll prefer to draw the diagram here. There are some. Yeah, this is the diagram now. Well, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे. दिस इज प्लस क्यू. रेडियस रेडिया अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ वाला रेडियस है, व्हाट इज दिस रेडियस? दिस रेडियस इज ए, दिस रेडियस इज बी एंड दिस रेडियस इज सी. समझ में आ गया? यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू. I think let's see. A non-conducting sphere of radius a has net charge q uniformly distributed throughout its volume. Plus q मतलब this is वॉल्यूम वाला चार्ज है ये. समझ में आ गया? इट्स नॉट सरफेस वाला चार्ज, वॉल्यूम वाला चार्ज. मतलब यहाँ पर रो वाला फॉर्मूला आएगा. करेक्ट? A spherical conducting shell having inner and outer radii b and c. So coming back to, they say a spherical conducting shell having inner and outer radii b and c and net charge minus q is concentric with the sphere. तो यहाँ पर भी वॉल्यूम चार्ज है, यहाँ पर भी वॉल्यूम चार्ज है. इज दिस ओके? ये कंडक्टिंग स्फीयर है. दिस इज ए कंडक्टिंग स्फीयर. इस कंडक्टिंग स्फीयर के जो रेडिया है वो ऐसे इस प्रकार से है. अब मुझे यहाँ पे कुछ, देयर आर फ्यू थिंग्स गिवन हियर. नाउ हियर the electric field at a distance r from the center, r is less than a. r अगर less than a है, check here, please understand, where is r? r कहाँ पर है? पहले केस में जो r दिया है, this r is less than a. Can you see? r is less than a. less than a दिखाई दे रहा है वो? Now basically this is a, ये है तुम्हारा a, एंड r is less than a मतलब इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर है ये. तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी हमने देखा हो? The one which we derived just now. ठीक है? What is that formula? ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है Q, सॉरी व्हाट इज दैट, E इज इक्वल टू, ये जो ऊपर का जो फॉर्मूला लिखा था वही है. E इज इक्वल टू क्या आता है वो? यस, E इज इक्वल टू Q. अब ये Q मतलब ये स्मॉल q होगा, कैपिटल Q होगा, सॉरी स्मॉल q होगा, Q into r upon 4 pi epsilon 0. r is that radius, outer maximum radius, तो वो जो कि वो यहाँ पर a है, a cube. is this clear or no? समझ में आ गया कि नहीं आया? once again I'll explain this once again. I'll explain this once again.
मुझे बताइए यहाँ पे जो रेडियस कैसे कैसे है, बताइए जरा, रेडियस कैसा कैसा है? ये वाला रेडियस कितना है? ए। ये वाला, दिस रेडियस इज बी एंड दिस रेडियस इज सी, करेक्ट है? दिस इज ए बी एंड सी। और पहले केस में जो बात हो रही है आर इज लेस देन ए, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है और मेरे ख्याल से चार्ज इज माइनस क्यू ओवर हियर, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पर अंदर की तरफ प्लस क्यू चार्ज है और इसके अंदर विद इन दिस यहाँ पर पॉइंट पी है विच इज एट ए डिस्टेंस आर। तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार होगा और जैसे हमने डिराइव किया था उसी तरह से होगा ना। अब हमने जो डिराइव किया था उसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो बड़ा वाला रेडियस था वो था कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है, तो फॉर्मूला इज दिस क्यू आर अपॉन 4πε0 आर क्यूब। तो यहाँ पर कैपिटल आर का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है? आई एम, यस, नहीं यार, उसको मैं सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम फॉरगेटिंग अबाउट द आउटसाइड थिंग बिकॉज मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर है यार, तो बाहर का कोई संबंध ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा उसके लिए, व्हाट इज E इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4πε0। अरे आर के जगह पर क्या है यहाँ पे, तो वही बता दो मुझे। दैट्स व्हाट इज गिवन हियर, इज दिस करेक्ट? समझ में आ रहा है? हाँ। सो व्हाट इज दिस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, इसके अब की बार आर इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। नाउ आर इज लाइंग बिटवीन ए और बी के बीच में, यहां पर है, इज जीरो इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज नॉट द करेक्ट, क्योंकि यहां पर वो जीरो हो ही नहीं सकता। वहां पर चार्ज भरा हुआ है ना, वहां पर भी वॉल्यूम ऑफ चार्ज भरा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो वो जीरो नहीं है वहां पे, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्या दिया है स्टेटमेंट? द चार्ज ऑन द इनर the electric field at a distance, third वाला, the electric field at a distance r, अब के बार r is between b and c। अब ये उन्होंने ऑलरेडी बताया कि दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में देखा था, डू दे पास थ्रू कंडक्टर? मुझे भी पता नहीं, बराबर है ना? इधर लिखा है, ये देखो इधर लिखा है, properties of electric lines, these they pass through conductor but they do not pass through conductor, and inside the conductor the electric field inside the conductor is always zero but they pass through the insulator, yes or no? अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि दिस इज पूरा का पूरा कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टिंग है, दिस इज कंडक्टिंग, ये बताया ना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए, अंदर का नॉन कंडक्टिंग है और बाहर का है स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, ये वाला कंडक्टिंग है, ठीक है। अगर ये बी है और ये सी है तो ये कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जीरो होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, यस और नो, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर। तो उन्होंने बोला कि बी और सी के बीच में अगर पॉइंट है तो मुझे वहां पर वो जीरो मिलेगा, यस और नो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फॉर बी एंड सी के बीच में जीरो, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज इट इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है इस वजह से, बीइंग अ कंडक्टर, यस और नो। समझ में आ गया? अगला है स्टेटमेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट है? द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल इज माइनस क्यू। हाँ, ये जो स्फेरिकल शेल है इसके अंदर की तरफ इनर सरफेस पर माइनस क्यू वाला चार्ज होगा, ऑफ कोर्स होगा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल इज प्लस क्यू, आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, भाई अगर यहां पर माइनस क्यू है और ये कंडक्टर है तो इसके बाहर का जो आउटर शेल होगा, स्फेरिकल शेल का आउटर वाला पार्ट, तो यहां पर भी माइनस क्यू होगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट?
कंडक्टर को आप जो भी कुछ चार्ज दोगे वो कंडक्ट करके बाहर और अंदर दोनों तरफ वो दिखा देगा उस चार्ज को, यस और नो, इजंट इट? तो यहाँ पर माइनस क्यू वाला चार्ज होगा, वो बोल रहे प्लस क्यू बोल रहे हैं, तो ये गलत है। इज दिस ओके? सो विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स? आई थिंक 1, 3 and 4. These are the correct statement. 1, 3 and 4. So B is the correct answer and this is a star problem. Is this okay? ये स्टार प्रॉब्लम है क्योंकि इसके अंदर मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी है। Is that clear? I'll go for question number 99 now. Question number 99. Any doubts about these? क्या ये आप सबको समझ में आ गया? There is a solid sphere of radius r. There is a solid sphere of radius r. अब इन्होंने यहाँ पे दिया ही नहीं कि भाई वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, कोई बात नहीं। हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज थ्रू आउट इट। थ्रू आउट इट का मतलब क्या है? थ्रू आउट इट का मतलब क्या है? वॉल्यूम। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम। थ्रू आउट इट, यहां पर मैंने इसी को इसीलिए तो अंडरलाइन किया है कि बाबा इसका मतलब है इट्स अ वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई बात? ओके। लीनियर वॉल्यूमेट्रिक सरफेस, तो वॉल्यूम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? आर इज लेस देन आर। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, पूछ रहा हूं। देखिए ये है सॉलिड स्फीयर, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। तो इसके लिए उन्होंने पूछा है दिस इज द सॉलिड स्फीयर, या स्फीयर है, इसके अंदर थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज है, पूरा चार्ज है। इस स्फीयर का रेडियस कितना है भाई? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर? हेलो हेलो, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कैपिटल आर, और इसके अंदर एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए ऐसा गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे जो अभी अभी डिराइव किया था। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब। समझ में आ गया? अब ये बाकी सब चीजें फिक्स है, सिर्फ P पॉइंट मूव होता होगा, सो R उस हिसाब से चेंज होगा, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड दैट्स द आंसर। इज दिस ओके? एनी डाउट्स? पता नहीं मुझे इसको स्टार बोलना पड़ेगा या नहीं, इजी है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसीलिए तो देखो ना, जो गॉस थ्योरम है उसमें व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे से, पहली चीज जो वो बोलते हैं कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एचएससी में बस 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, एक है वॉल्यूमेट्रिक, दिया नहीं, वॉल्यूमेट्रिक हमने डिराइव किया है, लीनियर सरफेस 2 ही है, और जो प्लेट वाला है वो वॉल्यूम का नहीं है, वो भी सरफेस का ही है, वो भी सरफेस का है, सिग्मा का है ना, वो सिग्मा जहां है वो सरफेस है। हाँ 2 दिया है, और यहां पर सिलेंड्रिकली सरफेस, सिग्मा है ना उसके अंदर, जिसके अंदर सिग्मा है वो सरफेस है, करेक्ट है। समझ में आ रही है बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन हियर ऑफ द डे फॉर फिजिक्स, आई वुड से। अगला क्वेश्चन चलिए। एंड हाँ, दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम है, ये स्टार प्रॉब्लम है, ये डेरिवेशन अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। कौन बोलता है डेरिवेशन नहीं होता नीट जेईई सीईटी में? देखिए यहाँ पे अभी, एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r.
देखिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का चार्ज है Ze, Ze, समझ में आ गया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। तो इसके आजू बाजू इर्द गिर्द सराउंडिंग रीजन में सब निगेटिव चार्ज है भाई, और ये कहां तक फैला हुआ है, अप टू रेडियस r। द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, करेक्ट। तो एटम में ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये अर्ली मॉडल, सो दिस वाज द अर्ली मॉडल व्हिच वाज पुट फोर्थ बाय रुदरफोर्ड। तो उसने बताया था कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा उन्होंने बोला है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी चाहिए अपने को। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर आर इज लेस देन आर इज, ये अपने को अभी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों को? तो वी हैव टू वर्क इट आउट विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के हिसाब से अपने को ये करना पड़ेगा। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस थ्योरम बोलता है इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंसिडर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, इजंट इट? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देखते हैं। तो उसके लिए आई विल कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। यहां पर मैं गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेता हूं इस तरह का। दिस इज द गॉसियन सरफेस। ठीक है, आई वुड से ये जो डॉटेड वाला है वो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर मुझे बताइए, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो व्हाट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज? टोटल पॉजिटिव चार्ज वो कहां पर है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इज एट न्यूक्लियस। कितना है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज एट न्यूक्लियस? इट इज प्लस Ze। अगर एटम न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, देन व्हाट इज द टोटल नेगेटिव चार्ज व्हिच इज सराउंडेड? नेगेटिव चार्ज व्हिच इज सराउंडिंग, वो भी माइनस Ze ही होगा ना, बराबर है क्या? सो यहाँ पर जो पूरा का पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ चार्ज है वो कितना है? माइनस Ze है। इज दिस क्लियर टू ऑल? इजंट इट? सो अब मुझे बताइए कि ये जो निगेटिव चार्ज है उसका डेंसिटी क्या होगा? व्हाट इज निगेटिव चार्ज डेंसिटी? निगेटिव चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी। The volume density of the negative charge is given by rho is equal to total charge Ze, isn't it? Ze माइनस नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, नहीं तो लिख दो, चलो माइनस। So negative charge volume density is charge upon volume. So what is the volume over which the negative charge is spread? It is 4 by 3 pi capital R cube. I hope this is clear. Negative charge is distributed surrounding the nucleus, correct? So which indicates that the density rho is equal to minus 3Ze upon 4 pi R cube. सही है, isn't it? This is the charge density. Now consider this Gaussian surface. Gaussian surface की अगर हम बात करें, if I talk about the Gaussian surface which I have shown over here, अगर इस Gaussian surface की बात करें तो I have to apply the Gauss theorem over there. Gauss theorem क्या बोलता है? This was the first point. ये पहला point था हमारा। दूसरा point, by Gauss theorem integral of E bar dot ds bar, मुझे यहाँ पे चाहिए ना, at this point I want, so this is our point P। तो ये अगर Gauss theorem Gaussian surface है तो यहाँ पर होगा वो एरिया ds, yes or no? This is area ds, और इस ds एरिया का जो परपेंडिकुलर होगा
दिस इज द एरिया वेक्टर ds बार, करेक्ट है, इजंट इट? अब देखिए ये पॉइंट है अंदर की तरफ, दिस पॉइंट इज इनसाइड, इनसाइड, तो टोटल चार्ज पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, अगर मैं पूरा का पूरा वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस वॉल्यूम से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, सो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, यस और नो? इफ आई एम कंसिडरिंग द गॉसियन सरफेस को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर मोर पॉजिटिव चार्ज एंड लेस नेगेटिव चार्ज, सो व्हाट इज द रिजल्ट? पॉजिटिव चार्ज की वजह, पॉजिटिव चार्ज उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो बाहर की तरफ होगा, यस और नो? isn't it? This is electric field intensity vector, that is E bar, and E bar and ds bar के बीच में एंगल थीटा is equal to 0, मतलब cos theta is equal to 1. Is this okay? So looking at this expression, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है E bar dot ds bar, what is that? That is actually the LHS. LHS की अगर मैं बात करूँ तो E bar dot ds bar which is equal to E into ds into cos theta, लेकिन cos theta 1 है, E constant है, क्यों? क्योंकि वो रेडियस मैंने फिक्स कर दिया है, तो E इज इंटीग्रल ऑफ ds. अब ये जो ds इन सबको ऐड करूंगा तो जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया कितना आएगा बताइए? इट विल बी 4 pi small r square, yes or no? Likewise I'll find out what is the RHS क्या होगा? RHS is equal to q upon epsilon 0. q is the total charge inside. अब मुझे अंदर का चार्ज पता करना है, बराबर है क्या? Charge enclosed by the Gaussian surface. This is nothing but charge enclosed by Gaussian surface. By Gaussian surface. तो अब गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है भाई? ये न्यूक्लियस वाला चार्ज तो मुझे ऑलरेडी पता है, इट इज प्लस जेड ई, लेकिन माइनस वाला चार्ज मुझे कैसे पता चलेगा? इट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम, so volume charge density into the volume of Gaussian surface, volume of Gaussian surface जो है volume enclosed by Gaussian surface, ठीक है? तो ये कितना चार्ज होगा बताइए? इट इज प्लस जेड ई माइनस रो इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 स्मॉल आर क्यूब, बराबर है? बाय द वे व्हाट इज रो दैट वी हैव रिटन हियर? रो के लिए हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, दिस इज रो, हाँ, तो माइनस वो इट्स ऑलरेडी टेकन हियर, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है, तो इट विल बिकम 3ze अपॉन 4 pi r cube into volume of the Gaussian surface is 4 pi small r cube, इसमें 4 pi gets cancelled, isn't it? So this is ze minus 3ze r cube upon capital R cube. This is the net charge, isn't it? तो RHS अगर मुझे लिखना है तो यहाँ से ZE कॉमन ले लो और एप्सिलॉन 0 से डिवाइड करो, सो इट विल बी ZE अपॉन एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 minus 3r cube upon capital R cube. Is this clear to you all? Now equate the LHS and RHS. बराबर है क्या? कौन बोलता है डेरिवेशन नहीं होता है? So by Gauss theorem, are you understanding this? So by Gauss theorem, what we get there? By Gauss theorem, it will be E into 4 pi r square is equal to ZE upon epsilon 0 into 1 minus 3 r cube upon capital R cube. ओके मुझे E चाहिए तो 4 pi r square को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट यू गेट देयर? देयरफॉर दिस विल गिव मी E इज इक्वल टू ZE अपॉन 4 pi epsilon 0 r square into 1 minus 3 r cube upon capital R cube. ओके वेल दिस इज द आंसर. इसमें से आर स्क्वायर को अब अंदर भेज दीजिएगा. हाँ तो क्या मिल जाएगा? ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 3r अपॉन आर क्यूब. इट इज, इट्स नॉट देयर. 3 क्यों नहीं है फिर यहाँ पे?
एक सेकेंड, 3 कहीं पे कैंसिल हो रहा होगा शायद। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली 3 कैंसिल होगा, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस 4/3 होना चाहिए ना, 4/3 एंड दिस 3 गेट्स कैंसिल, सो ये 3 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल एनीवेयर। ये 3 हर जगह से अगर हम उड़ा देंगे तो देन इट इज ए इज द आंसर देयर, करेक्ट ना? इज दिस ओके? हाँ, नाउ सच केसेस, in such cases it is always better to learn that A is the answer there. Is this okay? So we stop here for physics and I like to switch over to